in the name of services, they are just creating bullshit. और पैसा भी हमसे चार्ज कर लेगा. And then I realized it was that I had said that let me see the place and started to how we started taking in my life got married 7% लोग वो भी lawyer And I will hide the floating controls so that I can see the screen. ठीक है. Is my screen visible to everyone? Great. I'll keep the chats open on the side so I can also know if anyone is saying anything. Okay, so today I'll be covering option strategies, and I will start very quickly with the basics because some of us will already know what is options and all. So I will not spend a lot of time on the basics, but some of us don't know about it much. So I will start with a small time on basics. So to begin with, let's have clarity on what is options. Options is a derivative instrument to create a right to buy or sell a stock or index. This is a right, not so you can buy or sell, but it is not an obligation. And this right is created in advance for a future date based on your future view of a stock or index. As we go further, you will understand what this is. The value, it is called a derivative because the value of this instrument, options, is derived from the value of the underlying stock or index, and then the value of the option will change according to the change in the stock or index price. So that is why it is a derivative. जैसे दूध से दही बनता है. ऑप्शन की जो वैल्यू होती है उसको प्रीमियम कहते हैं. द रीजन इज, जैसे हम लोगों का आदत है कि इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, सो ऑप्शन की वैल्यू को भी प्रीमियम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज लाइक एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द फ्यूचर राइज और फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स विच वी आर इंटरेस्टेड इन. जैसे अगर प्राइस 100 रुपया है एक आध स्टॉक की, एंड इफ वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 150 फ्रॉम 100, then we are insuring today. If we buy a call of 100 rupees, we are insuring today that even if the price is going to 150 in the next 1 month, we are able to buy it at 100 and sell it at whatever the market price is. So we are basically buying an insurance against the future rise or fall of the stock or index, and that is why we are paying a premium for that insurance. मतलब 100 रुपए का मैंने स्टॉक खरीद लिया, आगे जाके वो 150 भी हुआ तो भी आई हैव दैट इंश्योरेंस कि मैं 100 में खरीद पाऊंगा, भले वो 200 पे जाए, और मैं जब मार्केट प्राइस होगी उस हिसाब से बेच पाऊंगा. और ऑप्शन का जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें वी हैव व्हाट इज द टाइप ऑफ द ऑप्शन, वेदर इट इज कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, डेट कब एक्सपायर हो रहा है, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है अंडरलाइंग स्टॉक का. मतलब अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने 100 रुपए के लिए बनाया है तो 100 रुपए इज द स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, and spot price is the market price of that stock or index, market value. वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडेक्स है.
स्ट्राइक प्राइस जो होती है दैट इज द करंट, इट इज द प्राइस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट प्राइस 100 रुपया है और हम लोगों को गारंटी है कि वो 120 क्रॉस करेगी, तो वी कैन ऑल्सो बाय ए कॉल एट 120 and that is the strike price, or we can buy a call at 80 rupees also, that is the strike price. तो there are definitions like in the money, out of the money, वो आगे आएगा, but strike price जिस प्राइस के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वो प्राइस होती है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्शंस का जैसे ये थे कि एक लास्ट पॉइंट था कि इट हैज ए फिक्स्ड एक्सपायरी डेट, कि जैसे हम लोग स्टॉक खरीद के रख सकते हैं फॉर जनरेशन्स, ऑप्शन में वैसे नहीं होता। ऑप्शंस का एक फिक्स एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद वो वर्थलेस हो जाता है। मतलब उसके बाद उसका अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, एक्सरसाइज नहीं कर सकते उसको। तो ऑप्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस? Basically there are two options, one is a call option and another is a put option. Call option में ये होता है we have a right but not an obligation to buy the underlying stock or index at the strike price on or before the expiry date to benefit from the rise in value of the underlying stock or index. इसमें rise यूज किया है। मतलब क्या है कि just a minute, someone is speaking too loudly outside. So call option is basically we have the right to buy that stock. Suppose एक XYZ stock लिया, उसका strike price जो है, suppose we select a strike price of 100 rupees, तो we are creating a right to buy that stock at a future date. मतलब समझो मैंने नवंबर एंड का स्टॉक ये किया एक्सपायरी, तो नवंबर एंड तक whenever I want to exercise my right, I can exercise to buy that stock at 100 rupees only. मतलब यह है कि अगर स्टॉक 200 रुपया हो गया, 500 रुपया भी हो गया, तो भी मेरे पास वो राइट है कि मैं 100 रुपये में खरीद पाऊंगा उसको। सो दैट इज द राइट आई एम क्रिएटिंग, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब समझो स्टॉक 80 रुपये पे गया, इंस्टेड ऑफ 100 इट गोज डाउन टू 80 रुपीज, माई स्ट्राइक प्राइस इज 100 रुपीज, तो मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पास राइट है। तो मैं 80 रुपये में खरीद पाऊंगा कि हाँ खरीद पाऊंगा, इफ आई एक्सरसाइज आई कैन बाय, बट मुझे वो नहीं करना है, लॉजिकली कोई नहीं करेगा। तो मुझे ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन राइट है। किस चीज के लिए? कि प्राइस अगर आगे बढ़ेगी तो भी मैं सेम प्राइस पे खरीद पाऊंगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन जो होता है, पुट ऑप्शन क्रिएट्स ए राइट ऑन द अदर साइड, कि प्राइस कितना भी गिरे आई विल बी एबल टू सेल एट ए गिवन प्राइस। मतलब जैसे इफ आई थिंक कि ये वाला स्टॉक है, ये मुझे 200 रुपये में बेचना है, लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस गिर के 50 रुपये होगी, तो भी मेरे पास राइट है कि मुझे वो 100 रुपये में मैं बेच सकता हूँ, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो ऑप्शन राइटर है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर के साथ। तो प्राइस अगर मैंने 100 रुपये का अंडरलाइंग का ये किया है, स्ट्राइक प्राइस पे साइन किया है, पुट ऑप्शन खरीदा है, तो मेरे पास ये राइट है कि इवन इफ इट गोज टू 500 रुपीज, सॉरी इवन इफ इट गोज टू 50 रुपीज, आई विल बी एबल टू सेल इट एट 100 रुपीज। लेकिन मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अगर 500 रुपया चला गया तो मेरे पास ये जरूरी नहीं कि मैं बेचूं उसको। सो इट इज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। एंड वाई डू वी डू दिस? टू बेनिफिट फ्रॉम द फॉल इन वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स। जैसे अगर आज ए सर्टन शेयर इज एट 100 रुपीज, मुझे लगता है कि ये गिर सकता है, तो मैं 100 रुपए का ऑप्शन पुट खरीद सकता हूँ, पुट खरीद के मैं रख दूंगा। एनी टाइम इन द नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सपायरी डेट, कभी भी प्राइस अगर 100 रुपए के नीचे होगी तो मैं कभी भी उसको एक्सरसाइज कर पाऊंगा और जितना भी प्रॉफिट है मैं उठा ले सकता हूँ। जस्ट चेकिंग, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट टाइप इट इन चैट। या फुल स्क्रीन मोड में ही रखा है। सो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का बेसिक्स समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज
अभी होता क्या है, टाइप्स और भी टाइप्स है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अदर टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। दूसरा ये है कि उसका डेफिनेशन, वी कैन से एन ऑप्शन इज एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। तो वो क्या होता है, तो एट द मनी ऑप्शंस, द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू और वेरी नियर टू द स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस इज द करंट वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस जो है जिस प्राइस पे हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी इंडेक्स और स्टॉक है उसकी जो करंट वैल्यू है उसका इक्वल, मतलब समझो इंडेक्स 25,400, सपोज इट इज 25,490, तो 25,500 इज ए स्ट्राइक प्राइस, दैट इज एट द मनी। या 25,500 अगर इंडेक्स होगा, देन ऑल्सो 25,500 का स्ट्राइक प्राइस इज द एट द मनी प्राइस। इन द मनी क्या होता है कि जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है। तो स्ट्राइक प्राइस अगर कॉल है, तो अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस समझो स्पॉट प्राइस या मार्केट प्राइस अगर समझो 100 रुपया है, और हमारी स्ट्राइक प्राइस समझो 80 रुपया है कॉल की, तो देन इट इज ऑलरेडी इन द मनी, इट इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट, क्योंकि मैं कभी भी उसको खरीद सकता हूँ। कॉल है ना, तो मैं खरीद सकता हूँ। कभी भी मैं 90 रुपए में खरीद सकता हूँ, या 80 रुपए का अगर स्ट्राइक प्राइस है तो 80 रुपए में मैं खरीद सकता हूँ। अगर वो 500 तक भी जाए तो भी मैं 80 में खरीद के मार्केट प्राइस में बेच सकता हूँ। तो दैट इज वाई इट इज ऑलरेडी इन द मनी, पैसा लेके बैठी है पोजीशन। और अगर पुट है तो स्ट्राइक प्राइस शुड बी लेस देन द स्पॉट प्राइस। मतलब समझो हमने सपोज स्पॉट प्राइस 100 रुपया है और स्ट्राइक प्राइस अगर 150 है, तो 150 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आई हैव द राइट टू सेल द स्टॉक एट 150 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज। तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ कि अगर 100 रुपीज है, मैंने अभी भी अगर एक्सरसाइज किया तो मैं 150 में बेच सकता हूँ। सो इट इज ऑलरेडी इन द मनी। और तीसरा है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या है कि अभी लॉस में है लेकिन आगे प्रॉफिट हो सकता है, या लॉस में भी बिक सकता है। तो स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन द स्पॉट प्राइस इन केस ऑफ कॉल। मतलब अगर मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपया, और अगर मैं स्ट्राइक प्राइस खरीद रहा हूँ 110 का, तो अभी तो मैं लॉस में हूँ, क्योंकि कॉल खरीदा है। आई कैन बाय इट एट से 120 रुपीज। 110 का है समझो, 110 में मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मार्केट प्राइस तो 100 रुपया चल रही है, तो मैं 110 में क्यों खरीदूंगा। तो इट इज आउटसाइड माई प्रॉफिट रेंज, सो इट इज आउट ऑफ द मनी। और आउट ऑफ द मनी फॉर पुट इज द रिवर्स। मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से कम है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट प्राइस अभी 100 रुपया है, तो और मेरा स्ट्राइक प्राइस है 90 रुपया, तो मैं 90 रुपये में बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट प्राइस 100 रुपया चल रही है तो मैं 90 में क्यों बेचूंगा, देन आई विल नॉट। तो अगर स्ट्राइक प्राइस नीचे, अगर वो 90 के नीचे जाएगी तभी प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए इट इज आउट ऑफ द मनी। अभी तक पैसा दिया नहीं है, पैसा मेरे पॉकेट से गया है, अभी तक मुझे मिला नहीं है। और इन द मनी में मेरे पॉकेट में प्रॉफिट आ गया है, अगर मैं अभी भी एक्सरसाइज करूँगा प्रॉफिट मिल जाएगा। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। मनीनेस एक कॉन्सेप्ट होती है, वो है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो प्राइस में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट एक्सपायरी। जैसे समझो मैंने 100 रुपए का ऑप्शन कॉल लिया है, और स्ट्राइक प्राइस 100 रुपया है, और मैंने 120 का कॉल खरीदा है, सॉरी पुट खरीदा है। तो 120 में मैं बेच सकता हूँ, अभी का प्राइस 100 है, तो 20 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब अगर मैं अभी भी बेचूं तो 20 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे मिलने वाला है, कुछ भी हो जाए। और टाइम वैल्यू होती है, ये होती है कि जितना रिस्क है होल्डिंग का उतना प्रीमियम बढ़ते जाता है, वो टाइम वैल्यू होती है। तो टाइम वैल्यू जैसे टाइम आगे जाता है तो वो जीरो की तरफ जाती है। जैसे इट इज लाइक एन आइस क्यूब, कि अगर बर्फ हम लोगों ने रख दिया, तो पानी की जो वैल्यू है तो पानी तो रहेगा, लेकिन उसको जो बर्फ बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स होते जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। तो अगर हम लोगों ने पुट खरीदा है, तो पुट अगर खरीदा है, और अगर हम लोगों ने 100 रुपए का पुट खरीदा है, राइट टू सेल एट 50, 100, और अगर मार्केट प्राइस अभी ये हो गई 50 हो गई, समझो हम लोगों ने 100 का पुट खरीदा है, मार्केट प्राइस 50 हो गई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज 50, क्योंकि मैं अगर अभी एक्सरसाइज करूँ तो मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट फिक्स है।
सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू. टाइम वैल्यू आपका प्रीमियम घटते जाता है विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड थीटा. तो थीटा रिड्यूसेस विथ टाइम. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा, गैमा, वेगा एंड रो. ये उनको ग्रीक्स बोलते हैं. तो डेल्टा क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इट इज अ रेंज ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विथ चेंज इन प्राइस. अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का स्टॉक प्राइस है और 100 रुपए का 110 हो गया, तो प्रीमियम कितना चेंज होगा. तो अगर एट द मनी का स्ट्राइक है, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्टॉप ये स्पॉट प्राइस, तो एट द मनी इज ऑलवेज 0.5 और क्लोजर टू 0.5. और इसका मतलब ये है कि अगर 100 का स्पॉट प्राइस अगर 110 हो गया और हमने कॉल खरीदा हुआ है, तो कॉल अगर मैंने 5 रुपए का खरीदा है, तो वो 10 रुपए से नहीं बढ़ेगा, वो 5 रुपए से ही बढ़ेगा. तो जितना मार्केट का प्राइस बढ़ेगा उसका आधा ही प्रीमियम बढ़ेगा. और जैसा डीप इन द मनी जाते हैं उतना गोज टुवर्ड्स 1. तो मतलब इट बिकम्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड विद द चेंज इन प्राइस. और जितना एटीएम से दूर जाता है उतना, मतलब ओटीएम की तरफ जाता है, उतना उसका कोरिलेशन कम होते जाता है. जितना फार रहेगा इन लॉस, तो 0.5 से 0.1 की तरफ भी जा सकता है. वेगा होता है वोलाटिलिटी एंड गैमा होता है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, मतलब एक्सीलरेशन जो बोलते हैं. चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन. तो डेल्टा का जो चेंज है, वो चेंज का जो रेट है वो गैमा होता है. तो जैसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी एंड चेंज इन स्पीड इज ये एक्सीलरेशन. तो वो डिफरेंस है. तो वेगा इज द वोलाटिलिटी. तो जितना वेगा बढ़ते जाता है और गैमा बढ़ते जाता है, गैमा बूस्ट उसको बोलते हैं, उतना टाइम वैल्यू बढ़ते जाता है. तो अगर प्राइस जोर से ऊपर जाएगी या जोर से गिरेगी स्पॉट की, तो अपना जो प्रीमियम है वो भी इतना जोर से बढ़ता है और गिर जाता है. लेकिन स्लगिश मूवमेंट होगी तो इसका इम्पैक्ट नहीं होता. फिर थीटा वर्क्स. थीटा इज बेसिकली जितना टाइम जाता है उतना वो आइस क्यूब स्टार्ट्स कीप्स मेल्टिंग टुवर्ड्स जीरो. अभी ऑप्शन में अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो अपना व्यू पॉइंट का ही पैसा बनता है. जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग चैट्स इन समटाइम्स. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट टाइप इट इन चैट सो दैट आई विल बी वॉचिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. कभी कभी हो जाता है कि नेटवर्क चला गया, मैं बोलता रहता हूँ. सो आई होप एवरीवन इज एबल टू हियर मी लाउड एंड क्लियर. प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. बीच बीच में मैं चेक करता रहूंगा. दीपक जी थैंक यू. ओके. तो ऑप्शंस में व्यू पॉइंट का ही पैसा होता है. अगर आपका व्यू पॉइंट सही है तो पैसा बनेगा, व्यू पॉइंट गलत हो गया तो पैसा जाएगा. सिंपल फंडा है. एक्सट्रीम व्यू पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तो कैन यू टेल मी इन चैट अकॉर्डिंग टू यू कि प्राइस का व्यू पॉइंट क्या क्या हो सकता है. ये नहीं करना चाहिए था, दिख गया. या अगर बहुत लोगों ने देखा नहीं तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू प्राइस का डायरेक्शन का व्यू पॉइंट क्या क्या हो सकता है. वेरी गुड. बुलिश, बेरिश, साइडवेज. बुलिश मतलब ऊपर जाएगा, बेरिश मतलब नीचे जाएगा, या साइडवेज मतलब ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, साइड में एक ही रेंज में घूमता रहेगा. गुड. एनी अदर थॉट्स. ठीक है. तो लॉजिकली स्पीकिंग ये तीन ही हो सकता है. प्राइस है तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या तो जहां है वहां रहेगी. तो मैं जो सीखा हूं उस हिसाब से एक्सट्रीमली बुलिश मतलब बहुत फास्ट ऊपर जाएगी, या एक्सट्रीमली बेरिश बहुत जोर से नीचे गिरेगी प्राइस, या साइडवेज रहेगी, एक रेंज में रहेगी. इसके अलावा फॉर ऑप्शंस वी आल्सो लुक एट थ्री मोर probabilities. Options is a game of probability.
नॉट बुलिश मतलब प्राइस नीचे जाएगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से प्राइस ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, या तो साइडवेज रहेगी या नीचे गिरेगी। सिमिलरली नॉट बेरिश मतलब इट विल नॉट फॉल डाउन, साइडवेज रहेगी या तो राइज करेगी यहाँ से, लेकिन नीचे नहीं गिरेगी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या डिमांड जोन है, इसके नीचे प्राइस जाने के चांसेस कम है। या तो ऊपर यहाँ से भागेगी या तो साइडवेज रहेगी। और नॉट साइडवेज भी होता है, मतलब जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स का डे है या बजट डे है, मुझे मालूम है ये प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी मालूम नहीं, लेकिन साइडवेज पक्का नहीं रहेगी। तो ये भी अपने को सोचना पड़ता है व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस और क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज। तो नॉट बुलिश, नॉट बेरिश, नॉट साइडवेज, ये भी तीनों कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉट साइडवेज में होता है आई कैन नॉट से कि ऊपर टूटेगा फटेगा प्राइस या नीचे फटेगा, बट साइडवेज नहीं रहेगा। जैसे आपने इलेक्शन रिजल्ट जून लास्ट इलेक्शन में देखा था कि एक बार बहुत ऊपर चला गया, एक बार बहुत नीचे चला गया, जैसे ये रिजल्ट्स चेंज होते गए, लेकिन साइडवेज नहीं रहा। अभी व्यू पॉइंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। एक्सट्रीमली बुलिश व्यू पॉइंट अगर है तो अपने को पता है कि ये प्राइस बहुत जोर से ऊपर जाने वाली है, जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, तगड़ा ब्रेकआउट हो रहा है आफ्टर मंथ्स लॉन्ग साइडवेज मूवमेंट। तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो हम लोग कॉल खरीद सकते हैं, नेकेड कॉल जिसका कोई हेज नहीं है, या तो हम लोग स्प्रेड खरीद सकते हैं। अभी स्प्रेड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जस्ट अभी रिमेंबर, या तो कॉल खरीद सकता हूँ या तो बुल कॉल स्प्रेड खरीद सकता हूँ। एक्सट्रीमली बेरिश अगर है तो इसका मतलब मेरा व्यू पॉइंट है कि ये जोर से गिरने वाला है, तो या तो मैं पुट खरीदूंगा या बेयर पुट स्प्रेड खरीदूंगा। ये स्प्रेड होता क्या है आगे के इसमें मैं समझा दूंगा। Sideways, here I have a very strong conviction it is going to remain in a range, it is not going to move fast upwards or downwards। तो इसमें एक तो शॉर्ट आयन कॉर्नर ले सकते हैं या शॉर्ट आयन बटरफ्लाई ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेंज दैट वी कंसिडर। अगर बहुत ही नैरो रेंज है तो अलग कंसिडरेशन है, अगर ब्रॉड रेंज है तो अलग कंसिडरेशन है। नॉट बुलिश अगर है मतलब कुछ भी हो जाए प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, इट विल रिमेन साइडवेज और इट विल फॉल, तो इसमें हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड लेते हैं। अगर नॉट बेरिश है मतलब कुछ भी हो प्राइस गिरेगी नहीं, या तो साइडवेज रहेगी या ऊपर जाएगी, तो बुल पुट स्प्रेड लेते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट दिस इज फॉर योर रेफरेंस। और अगर हमारा व्यू पॉइंट है कि साइडवेज नहीं रहेगी, इलेक्शन रिजल्ट है या तो बजट है या तो ये कंपनी का रिजल्ट है, तो या तो ऊपर फटेगी प्राइस या तो नीचे गिरेगी, लेकिन साइडवेज नहीं रहेगी। तो उसमें या तो हम लोग एट द मनी कॉल एंड पुट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि पता नहीं दोनों तरफ किस तरफ जाएगी, तो कॉल भी खरीद लो पुट भी खरीद लो, एट द मनी ऑप्शन दोनों खरीद लो, या तो बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड का दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, दोनों कर सकते हैं। अभी स्प्रेड्स क्या होते हैं, मैंने स्प्रेड्स के बारे में बताया, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड। तो ये होता क्या है, तो बुल कॉल स्प्रेड इसमें ये होता है कि हम लोग एक कॉल खरीदते हैं और उसके ऊपर का कॉल बेचते हैं। इसमें क्या होता है फिर कि अपना इफ यू बाय नॉर्मल नेकेड कॉल, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और अपना लॉस लिमिटेड है, जितना आपने प्रीमियम दिया है मैक्सिमम उतना ही जाएगा। लेकिन अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड लिया तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड है और लॉस भी लिमिटेड है। जो लिमिटेड लॉस है इट इज लेस देन द नेकेड कॉल का प्रीमियम। तो एक तरह का हेज हो जाता है आपका, ये जो है रिस्क है वो और थोड़ा कम हो जाता है। बुल पुट स्प्रेड में बराबर अपोजिट है, हम लोग पुट बेचते हैं और ऊपर नीचे का एक पुट खरीद लेते हैं। मतलब इसमें क्या है कि वी नो कि प्राइस ये होने वाला है, मतलब पुट स्प्रेड क्यों खरीद रहे हैं हम लोग कि बुलिश व्यू है, प्राइस ऊपर जाएगी या तो साइडवेज रहेगी लेकिन नीचे नहीं गिरेगी। तो उसमें क्या होता है हम लोग पुट बेचते हैं, क्यों? क्योंकि पता है कि प्राइस गिरने के चांसेस कम है,
पुट में लॉस कब होगा? जब प्राइस गिरेगी। अगर बेचा है तो, खरीदा है तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बेचा है तो लॉस होगा। तो अगर हम लोग पुट बेचेंगे और नीचे का पुट खरीदेंगे तो क्या होता है कि प्राइस अगर गिरने लगी तो हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे का पुट जो हमने खरीदा है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अपना बेरिश नहीं होगा, इतना ही व्यू है, ऊपर जा सकता है, साइडवेज रहेगा, दोनों तरफ में। फिर हम लोगों को मोस्टली क्या होता है, हम लोग जब स्प्रेड लेते हैं उसमें आवर फोकस इज ऑन ईटिंग द टाइम वैल्यू, नॉट एक्चुअली कैप्चरिंग द फुल मूवमेंट। बेयर पुट स्प्रेड जो है इसमें अपना व्यू है बेरिश। तो बेरिश में हम लोग क्या करेंगे कि पुट खरीदते हैं। अगर बेरिश व्यू है कि मार्केट में प्राइस गिरेगी तो पुट खरीद सकते हैं। जितना प्राइस गिरेगी उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर 100 रुपये में है, हमने 100 का अगर एटीएम पुट खरीदा है और मार्केट प्राइस 100 है, और अगर वो 50 हो गई तो पुट की प्राइस भी बढ़ेगी। 50 से नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ओटी एटीएम खरीदा है तो 0.5 ही है, तो 25 से बढ़ेगी। लेकिन 100 हो गया तो और बढ़ेगी। तो जितना प्राइस इन द मनी होती जाएगी उतना उसका वेलोसिटी ऑफ इंक्रीजिंग द प्रीमियम विल बी हाई। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू तो घटेगी टाइम के साथ, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी जितना प्राइस गिरेगी। तो हम लोग पुट खरीद सकते हैं, लेकिन उसका जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है उसकी जगह अगर हम लोगों ने बेयर पुट स्प्रेड लिया तो नीचे का पुट हम लोग बेच रहे हैं। तो अगर एक लेवल के नीचे अगर प्राइस गिरने लगी तो जो बेचा है उसमें लॉस होगा, लेकिन जो खरीदा है उसमें प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें भी फोकस ये है कि टाइम वैल्यू खाओ। बेयर कॉल स्प्रेड में क्या है कि बेरिश व्यू है, लेकिन हम लोग कॉल के साथ उसको यूज कर रहे हैं। तो बेरिश व्यू है मतलब प्राइस विल नॉट गो अप, इट विल इधर फॉल और रिमेन साइडवेज। तो यहाँ पे हम लोग कॉल बेचते हैं कि अपने को पता है कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। अगर इसके ऊपर गई तो लॉस है एक लेवल के, लेकिन वो लेवल के नीचे रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो हम वो कॉल बेचते हैं और प्रीमियम खाते हैं उसका। और उसके ऊपर का कॉल एक खरीद के रखते हैं फॉर हेजिंग, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर बढ़ती गई 100 रुपए की, अगर 200 रुपये हो गई तो मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा। तो उसको लिमिट करने के लिए मैं ऊपर का कॉल खरीद लूंगा। तो उसके ऊपर अगर प्राइस गई तो वो जो खरीदा हुआ कॉल है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। एंड वन आई हैव सोल्ड, उसकी भी प्राइस बढ़ती जाएगी, लेकिन उसमें मेरा लॉस बढ़ता जाएगा। जो खरीदा है उसमें प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जितना डिफरेंस है उतना ही मेरा लॉस होगा। शॉर्ट एंड बटरफ्लाई जो मैंने बोला था, तो बटरफ्लाई में क्या होता है कि यू बाय कॉम्बिनेशंस। बटरफ्लाई और कॉन्डोर जो है उसमें बाय कॉम्बिनेशंस, कि एक बुलपुट स्प्रेड भी लेते हैं, बेयर कॉल स्प्रेड भी लेते हैं, और एटीएम का एंकर रखते हैं। एंकर एज इन द प्राइस एट विच यू आर टेकिंग द स्ट्राइक, द मेन स्ट्राइक। शॉर्ट एंड काउंटर जो होता है उसमें भी सेम करते हैं, बट इट इज अवे फ्रॉम एटीएम। अगर रेंज है तो रेंज के बाहर लेते हैं। वो एक्चुअली अभी मैं जब ये खोलूंगा अपना सेंसिबल, तभी यू विल सी इट बेटर। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, दिस विल मेक इट मच क्लियरर। अभी यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस में मुझे लग रहा था कि प्राइस गिर सकती है। क्लासिक एग्जांपल कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल था, एक सपोर्ट लेवल वाज कांस्टेंट एंड ऊपर का जो ये था रेजिस्टेंसेस कम कम हो रहे थे। इसका क्लियर इंडिकेशन था कि प्राइस यहाँ से टूट सकती है। लेकिन नीचे एक डेली डिमांड जोन था, तो मुझे डर था कि प्राइस यहाँ पे रुक जाएगी। तो अगर ये डिमांड जोन नहीं होता तो मेरे पास क्या ऑप्शन होते कि ब्रेकडाउन ट्रेड है, प्राइस जोर से नीचे गिर सकती है। तो फिर क्या है कि मैं पी खरीद सकता हूँ। पुट ऑप्शन, पी इज पुट ऑप्शन। या तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा, जितनी प्राइस गिरेगी उतना पुट का वैल्यू बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। या तो मैं कॉल सेल कर सकता हूँ। जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना प्राइस गिरेगा उतना मेरा कॉल का जो प्रीमियम है वो घटता जाएगा, फाइनली वो जीरो हो जाएगा। तो जितना भी प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया है वो पूरा मेरे खीसे में गया, प्रॉफिट हो गया। ये कर सकता हूँ। या तो बेरिश व्यू है तो बेयर कॉल स्प्रेड कर सकता हूँ, मतलब ये लेवल का 2500 का मैं कॉल बेचूंगा और 2550 का खरीदूंगा। तो जब तक प्राइस 2550 के ऊपर नहीं जाएगी, टिल इट रिमेन्स बिलो 2500, आई विल बी इन प्रॉफिट।
और between 2550 and 2500 आई विल हैव ए लेवल वेयर मेरा लॉस तो हो सकता है लेकिन लिमिटेड रहेगा. अगर 2550 के ऊपर अगर प्राइस चली गई, इवन देन माई लॉस इज लिमिटेड, बिकॉज मैंने ऊपर का कॉल खरीद के रखा है. और बेयर पुट स्प्रेड भी मैं ले सकता हूँ. बेयर पुट स्प्रेड इसलिए कि प्राइस तो गिरने वाली है मुझे दिख रहा है, तो मैंने पुट खरीद लिया और नीचे का एक पुट बेच दिया कि अगर फॉर एग्जांपल इसके यहाँ से बाउंस होने के चांसेस है, अगर मुझे लगा ये जोन देख के, तो मैं वो भी कर सकता हूँ टू प्रोटेक्ट माय रेंज. कि अगर गलती से ऊपर चला गया तो मेरा जो बेचा हुआ पुट है उसका जो प्रीमियम मैं खा जाऊंगा, और ऊपर चला गया उसमें तो लॉस होगा लेकिन वो लिमिटेड होगा. तो दीज आर द फोर ऑप्शंस. अभी इसमें मैं क्या करता, इन माय केस एज ए पर्सन हु इज वर्किंग ऑन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, मैं देखूंगा कि नीचे जो लेवल है ये बहुत ही पास है, इट इज वेरी क्लोज. तो अगर यहाँ से गलती से बाउंस हो गया तो फिर मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि प्राइस गिरे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरे और एक साइडवेज मूवमेंट में जा सकती है. बाद में गई नहीं वो अलग बात है, लेकिन व्हेन दिस ब्रेकडाउन वाज हैपनिंग, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि प्राइस गिरेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, यहाँ रुक सकती है डिमांड जोन पे. तो इसलिए मैंने क्या किया कि आई बॉट ए बेयर कॉल स्प्रेड. मैंने ये बेचा क्योंकि इसमें एक नया सप्लाई जोन भी बन रहा था, तो इसके नीचे मैंने बेचा. तो कॉल बेचा और ऊपर का कॉल मैंने खरीद लिया. वो इसलिए कि अगर प्राइस ऊपर गई तो मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा, लेकिन नीचे अगर 2500 के नीचे अगर प्राइस रही तो मैं पूरा प्रीमियम घर ले जाऊंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ बेयरिश, और ये रियल ट्रेड्स है जो मैंने लिए थे. And since it is a closed group, I'm showing the latest ones. Otherwise, if it is an open social media thing, I cannot show that, because in public domain, no one is allowed to share actual latest charts unless you are a SEBI certified investor or analyst, investment advisor or analyst. So this is only for a closed group right now. जैसे ये एग्जांपल है बुलिश का. ये वीकली चार्ट है. वीकली चार्ट में मुझे दिख रहा है कि ये जो वीकली सप्लाई जोन था वो तोड़ दिया है, और उसके सप्लाई जोन के अंदर ही डिमांड जोन बन गया है वीकली, वो भी तगड़ा वाला. इफ यू लुक एट द वे द कैंडल हैज मूव्ड, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये है कि ये डिमांड जोन के नीचे प्राइस नहीं गिर सकती, ऊपर जा सकती है. और ये जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के ऊपर जाएगी. तो इसमें दो चीजें हो सकती है. प्राइस कैन स्ट्रेट अवे गो अप टू दिस सप्लाई जोन, या तो प्राइस गोज अप ए लिटिल. यहाँ पे इफ यू सी, ये लेवल जो है इसमें प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस है. हो सकता है प्राइस थोड़ी ऊपर आ जाए, 2700 तक जाए, फिर नीचे आके यहाँ वीकली सप्लाई जोन से सपोर्ट ले, डिमांड जोन से, और फिर ऊपर जाए. दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी. तो मुझे ये तो पता है कि प्राइस इज वेरी लाइकली टू मूव अप, बट आई एम नॉट श्योर कि इट विल गो अप वेरी फास्ट और इट विल go very slowly or go sideways and then move up. So I know that it will not fall. So out of the six possibilities, the possibility I am considering is not bearish. It can be bullish or go sideways, but not bearish. तो फिर मैंने क्या किया कि आई सोल्ड ए पुट हियर, कि ये प्राइस के नीचे तो नहीं जाएगी, 2500 के नीचे नहीं जाएगी फॉर एग्जांपल. तो 2500 का मैंने पुट बेचा और 2400 का पुट खरीदा. उससे क्या हुआ कि 2500 के ऊपर, एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज अबव 2500, आई विल टेक होम द फुल प्रॉफिट. बट इफ द प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो 2500, I will start making loss, but the loss will be limited because I have a protective put that I have purchased at 2400. अगर 2400 के नीचे प्राइस जाने लगी तो ऊपर जो मैंने बेचा है उसका लॉस अनलिमिटेड होने लगेगा, और जो मैंने नीचे 2400 का पुट खरीदा है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होने लगेगा. तो दे विल कैंसल ईच अदर आउट, और मेरा लॉस विल बी लिमिटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक्स 2500 एंड 2400 माइनस जो मैंने प्रीमियम खरीद लिया है, प्रीमियम मैंने ले लिया है बेच के, और जो मैंने प्रीमियम खरीदा है उसका जो डिफरेंस है. तो वो आपको सेंसिबल में दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि ये प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस.
साइडवेज का भी एक एग्जांपल देखते हैं, साइडवेज विद ए पोटेंशियल ब्रेकआउट। जो मैं बोल रहा था, ये नैरो रेंज है, ये बहुत ही नैरो रेंज है। और ये जो अपना मूविंग एवरेज है वो भी बीच में है प्राइस रेंज के। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है, या तो प्राइस कुछ अच्छा सा ट्रिगर आ जाए आइशर मोटर से, समझो ऑटो सेक्टर के लिए कुछ ट्रिगर आ गया, तो इट इज पॉसिबल कि प्राइस ऊपर जोर से भागेगी इसको तोड़ के। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा ये है कि कोई कुछ न्यूज़ आ गया, ट्रम्प ने कुछ कर दिया, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है। यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, इट कैन बी एक्यूमुलेशन, इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन, वी डोंट नो राइट नाउ। तो यहाँ से प्राइस गिर भी सकती है, वी डोंट नो टुडे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगर इफ आई फील इट विल ब्रेक आउट ऑन ईदर साइड और रिमेन साइडवेज, आई हैव वन ऑप्शन। वन इज, अगर ये तोड़ के नीचे गई तो मैं बेयर पुट स्प्रेड लूंगा, अगर तोड़ के ऊपर गई तो बुल कॉल स्प्रेड लूंगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस साइडवेज मूवमेंट विल रिमेन। तो मैं बीच में क्या करूंगा, टिल द टाइम आई सी ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ ब्रेकआउट, आई विल टेक ए शॉर्ट आयन बटरफ्लाई। लेकिन जैसे एट द मनी पे बेयर कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड में कर दूंगा। बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है कि कॉल बेच दिया एट द मनी का और ऊपर का कॉल खरीद लिया। और बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है, एट द मनी का पुट बेचा और नीचे का पुट खरीद लिया। तो प्राइस जब तक ये रेंज के आसपास रहेगी, ये प्राइस के आसपास, तब तक मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर ये रेंज के बाहर चली गई तो मैं लॉस में जाऊंगा। इस पोजीशन में तब मैं क्लोज करूंगा, तब तक जो टाइम वैल्यू में खाऊंगा वो तो मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो जैसे ही एक साइड में ब्रेकआउट होगी मैं उसको क्लोज करूंगा, और वो साइड का बुल कॉल स्प्रेड लूंगा या बेयर पुट स्प्रेड लूंगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज ब्रेकिंग आउट और डाउन। So, Mahesh Moghe has a question. I will answer all questions at the end. I will scroll and answer all the questions later. So that in the interest of time, I will cover everything. उसके बाद we can extend a little bit if required, so that anyone else has urgency to leave, they can leave. But I will cover everything in the meanwhile. अभी दूसरा एक एग्जांपल है साइडवेज का। ये पोटेंशियल ब्रेकआउट का था। ये स्लगिश है, मतलब जो है ना कि साइडवेज रहेगी बट विल नॉट मूव अप फास्ट और विल नॉट मूव डाउन वेरी फास्ट, स्लगिश रहेगी। ये एग्जांपल है, रियल एग्जांपल, इसमें मैंने पैसा बनाया था। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक वीकली चार्ट है, ऊपर मंथली सप्लाई जोन है, नीचे मंथली डिमांड जोन है। तो मंथली डिमांड जोन जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्राइस नीचे नहीं गिरेगी जोर से, जब तक मंथली सप्लाई जोन नहीं टूटेगा तब तक प्राइस ऊपर जोर से नहीं भाग सकती। एंड मंथली जोन्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग इवन इफ दे आर टेस्टेड। और यहाँ पे तो क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, तो प्राइस नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन द प्राइस केम हियर, आई डिड नॉट डायरेक्टली बाय एन आयन कॉन्डर, ये मैंने आयन कॉन्डर बनाया इस तरह से कि पहले जब प्राइस यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन दिख गया कि ये बुलिश हो सकती है, और यहाँ पे मुझे स्ट्रांग इंडिकेशन मिला बिकॉज दिस वाज ए वेरी गुड कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज कॉल्ड एज ए बुलिश एनगल्फमेंट, कि एक लाल कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, विच शोज ए वेरी स्ट्रांग बुल बायस, बुलिश बायस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि आई सोल्ड ए बेयर पुट स्प्रेड हियर, तो मैंने इसके नीचे का पुट बेचा, और इसके नीचे का पुट समझो मैंने 950 का 940 का कुछ बेचा था, और नीचे का 900 का मैंने खरीद लिया था। क्यों खरीदा था, बिकॉज यहाँ पे एक हेज मिल जाता है तो मेरा लॉस लिमिटेड रहता है। एक्चुअली जरूरत नहीं थी बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन जस्ट टू इंश्योर दैट आई मेक लिमिटेड लॉसेस, मैंने वो करके रखा। यहाँ पे मैंने बुल पुट स्प्रेड भेजा, बुल मतलब पॉजिटिव व्यू पॉइंट, एंड पुट इज टेकिंग ए पॉजिटिव व्यू पॉइंट यूजिंग ए निगेटिव ऑप्शन। पुट इज ए निगेटिव ऑप्शन, वो तभी पैसा बनाता है जब नीचे गिरेगा। तो मैंने इसमें बेचा, खरीदा नहीं पुट, क्योंकि माई व्यू, इफ योर व्यू इज दैट प्राइस विल फॉल, सॉरी प्राइस विल राइज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल खरीद सकते हैं या तो पुट बेच सकते हैं। तो मैंने इधर पुट बेचा और नीचे का पुट खरीदा फॉर हेज।
जैसे ही प्राइस यहाँ आ गई, अब जब तक यहाँ ये ग्रीन कैंडल तक थी मुझे पता नहीं था ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। वैसे देयर वाज हाई प्रोबेबिलिटी वो नहीं तोड़ेगा बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, लेकिन यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका था। सो आई वेटेड टिल दिस कैंडल वाज ओवर। जैसे ही ये कैंडल बेरिश हैमर बन गई, तो ये मैंने ऊपर का कॉल बेचा, क्योंकि देयर इज अ वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस गोइंग अबाउ दिस। तो ऊपर का कॉल बेचा, 1020 या 1040 का, आई डोंट रिमेम्बर। ऊपर का कॉल बेचा आउट ऑफ दिस रेंज, एंड उसके ऊपर का कॉल खरीद लिया कि अगर उसके ऊपर गलती से प्राइस चली गई तो मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा। तो जब तक प्राइस 1050, जो मेरा ऊपर का एंकर था जो मैंने बेचा था, और यहाँ पे जो था 920 वगैरह कुछ था, तो ये दोनों प्राइस के जब तक ये प्राइस नीचे रहेगी टिल द एंड ऑफ द मंथ, आई विल मेक कंप्लीट मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि मैं दोनों तरफ का प्रीमियम खा जाऊंगा, टाइम वैल्यू खा जाऊंगा। तो ये रियल ट्रेड था। अभी व्हाट वी विल डू इज, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, आई विल शो यू प्रैक्टिकली आल्सो, एंड प्रोबेबली देयर आल्सो आई विल बी एबल टू आंसर, क्योंकि अभी 11:40 हो गया है। 15-20 मिनट में मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो प्रैक्टिकल के लिए लेट अस गो टू सेंसिबल। तो सेंसिबल का ये होता है, फॉर दोज हु डोंट नो, इफ यू हैव एन अकाउंट विद सर्टन ब्रोकर्स, दिस इज फ्री। अगर आपके इनमें से कोई अकाउंट है तो आप देख लीजिए, जीरोदा का है, एंजल वन, अपस्टॉक्स एंड आईसीआईसीआई डायरेक्ट। इफ यू हैव अकाउंट विद एनी ऑफ दीज, सेंसिबल इज फ्री। तो आई हैव एन अकाउंट विद जीरोदा, तो ये फ्री है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, आई कैन टेक ए ट्रेड। अभी आई विल शो यू वन ट्रेड विच आई एम करेंटली ट्रैकिंग। ये मैंने ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में इसके लिए रखा है कि मैंने वो शेर खान में खरीदा है, आई हैव नॉट परचेज्ड इन जीरोदा। तो दैट्स व्हाई इट इज इन ड्राफ्ट। ये एक पुराना था, 15,000 कुछ प्रॉफिट हो गया था, अगस्त का था, वो डिलीट करना रह गया। वीडीएल का मैंने ये किया था, बेयर कॉल स्प्रेड लिया था, उसमें 6,000 प्रॉफिट हो गया था। और ये बैंक निफ्टी में मेरा 8,700 प्रॉफिट हो गया था अगस्त में। बट दिस इज नॉट यूजफुल नाउ, आई डिलीट दिस। ये भी मैंने शेर खान में लिया था, इसलिए मैंने वो ड्राफ्ट में रखा था। अभी नया कुछ बनाऊंगा तो इसमें डाल दूंगा। अभी ये शेर खान पे मैंने कल ही स्ट्रेटेजी लिया है, ट्रेंड का लिया है। तो वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई हैव सीन इन ट्रेंड। चार्ट पहले देखते हैं। सो दैट विल गिव ए क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ द प्लानिंग। अभी मुझे पता नहीं, मैं प्रॉफिट में भी हो सकता हूँ, लॉस में भी हो सकता हूँ बाद में, एट द एंड ऑफ द मंथ। बट राइट नाउ आई विल जस्ट शो यू हाउ आई वेंट एंड टुक द ट्रेंड का ट्रेड। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सो वी डोंट नो आगे जाके क्या होगा। इसमें मैंने क्या किया, ट्रेंड का मैंने मंथली चार्ट देखा। मंथली चार्ट में क्या हो रहा है कि इट इज क्रिएटिंग, अभी ये हाई था, ये लो था, लोअर हाई, लोअर लो, फिर ये लोअर हाई बन गया इधर का, और अभी प्राइस नीचे आ गई। अभी लोअर लो बना नहीं है, लेकिन एक बार लोअर हाई लोअर लो बन गया है, तो द ट्रेंड है शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। अभी इसके यहाँ पे क्या हुआ था, ये मंथली चार्ट है, वी आर लुकिंग एट ए मंथली चार्ट। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर, प्रॉब्लम या इन द मंथ ऑफ, इफ यू सी हियर, जुलाई, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फमेंट बन गया। इफ यू सी, जून की जो कैंडल है उसके डबल साइज की जुलाई की बेरिश कैंडल बन गई है। इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि यहाँ पे बेरिशनेस आ गया। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, मंथली डिमांड जोन, लेकिन वो एक बार टेस्ट हो चुका है और प्राइस यहाँ से नीचे आई है। अभी क्या हो गया कि व्हेन आई सॉ हियर, ये जो सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस ये हो गई थी, उसके पास आके 2 बार 2 महीने फुल मंथ
अक्टूबर का पूरा मंथ प्राइस यहाँ रुकी, सितंबर में एंड वहां पे रुकी, एंड ऑफ सितंबर। अक्टूबर में भी यहाँ पे रुकी और यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, बिकॉज यहाँ पे एक सप्लाई जोन और नया बन गया। इफ यू सी दिस मंथली सप्लाई जोन, ये ग्रीन कैंडल जो है, तो यहाँ पे आके प्राइस रुक गई, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, और यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बनाया, इफ यू सी। तो इट वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस कम है। स्ट्रॉन्ग मंथली का मंथली इस पे है, तो इट इज वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से जोर से गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे वी आर आल्सो सिटिंग ऑन ए डिमांड जोन विच इज वेरी क्लोज, तो हो सकता है कि साइडवेज रहे लेकिन जोर से नहीं टूटे। नाउ आई वेंट टू वीकली चार्ट। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ कि मैंने ये ट्रेंड कैसे लिया, ट्रेंड का। अभी वीकली चार्ट में भी आप देखो तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंड है। लोअर ये हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। और यहाँ पे भी आप वीकली में भी देखो तो यहाँ पे फॉर 1 2 3 4 5 6 वीक्स तक प्राइस इसी रेंज में रही, यहाँ से ऊपर जा नहीं पाई। प्राइस कुडेंट गो अप फ्रॉम हियर, दो दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग नीचे मंथली डिमांड जोन है, लेकिन वो भी उसको ऊपर पुश नहीं कर पाया। और यहाँ पे एक वीकली छोटा सा सप्लाई जोन भी बन गया है। आई विल शो यू। ये वीकली चार टाइम फ्रेम पे ये एक सप्लाई जोन बन चुका है, जहां से प्राइस जोर से गिरी। तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस मे नॉट गो अप अबव दिस सप्लाई जोन विच इज 5251 5250, ऊपर की रेंज है। तो दिस गिव मी एट द एंड ऑफ द वीक फर्दर प्रोबेबिलिटी कि ये प्राइस नीचे ही जा सकती है, ऊपर जाने के चांसेस कम है, या तो साइडवेज रहेगी। दिस गिव मी कॉन्फिडेंस। और ऊपर से ये भी देखो कि पिछले वीक से भी नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है और नीचे ही रही है एंड फॉर द एंटायर वीक इट डिड नॉट क्रॉस द प्रीवियस वीक्स बेरिश कैंडल। तो नाउ वी आर सिटिंग ऑन ए पोटेंशियल बिग ब्रेकडाउन, जोर से प्राइस गिर सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, आई लुक्ड एट दिस चार्ट एंड देन आई वेंट टू डेली। डेली में क्या दिखा कि डेली सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है, दो बार सेकंड टाइम रिएक्ट किया और नीचे आ गई। ये डेली डिमांड जोन इज नॉट वेरी स्ट्रांग। आप अगर देखो तो उसका ये बुलिश एनगल्फमेंट बना था, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, टेपर आउट हो गया, फॉलो थ्रू नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन भी था, यहाँ से प्राइस गिरी। तो ये पता है कि डेली डिमांड जोन के ऊपर भी जाने के चांसेस कम है। प्लस ये जो ईएमआई है, ये ईएमए जो है 20 मिनट का, वो भी इधर आ गया है। तो इसको भी तोड़ के ऊपर जाने के चांसेस कम है। इफ यू सी यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ टच हुआ नीचे आ गया, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी लेस। So then I got very high confidence कि price can fall from now till end of November, or at least remain sideways below this level. So that is the reason I went and did this trade. इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि 4600 के प्राइस नीचे ही रहेगी टिल द एंड ऑफ नवंबर। एटलीस्ट एंड ऑफ नवंबर तक प्राइस उसके नीचे रहने के चांसेस है। 4600, अब ये 4627 है, इसमें से थोड़ा भी नीचे अगर तोड़ के चला गया तो वो फुल प्रॉफिट में चला जाएगा। मतलब एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स बिलो 4600, आई विल टेक होम मैक्सिमम प्रॉफिट्स। मैक्सिमम प्रॉफिट्स कितने हैं यहाँ पे दिख जाएगा, दिखाता हूँ। एंड अदर साइड आई हैव टेकन ए हेज। हेज क्या लिया है कि ये कॉल मैंने बेचा है, लेकिन समझो फॉर एनी रीजन, फॉर एनी अनाउंसमेंट और एनीथिंग, अगर प्राइस ऊपर भागी तो टिल द प्राइस क्रॉसेस 4700 आई कैन मेक लॉस। आफ्टर 4700 इज क्रॉस्ड माई लॉस विल बी लिमिटेड। उसके ऊपर अगर प्राइस भागी 4700 के ऊपर, तो ये कॉल मैंने खरीदा है, तो व्हेन यू बाय ए कॉल द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड इफ इट गोज अबव दैट लेवल। तो 4700 के ऊपर अगर प्राइस अगर 7000 तक भी गई तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया। लेकिन अगर 4600 के ऊपर जितना भागेगी मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। तो बिटवीन 4600 700 जब तक प्राइस रहेगी आई विल नॉट हैव ए बिग लॉस। लेकिन 4700 के ऊपर अगर गई तो 4700 सी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अनलिमिटेड,
और 4600 सी विच जो हमने बेचा है, इट विल आल्सो स्टार्ट, लॉस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अनलिमिटेड. तो बोथ अनलिमिटेड विल कैंसिल ईच अदर एंड देन माई लॉस विल बी लिमिटेड बिटवीन 4600 4700 का जो डिफरेंस है. तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 4685. मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 5135 फॉर ईच लॉट. मैं ये जो एंटर करता हूँ, आई डोंट एंटर हाउ मेनी लॉट्स आई हैव परचेस्ड because I keep sharing it with people, but I do the calculations here only for one lot. तो इसमें नाउ सपोज वी वांट टू सी कि इसका क्या हो सकता है, तो आई कैन ओपन इट इन बिल्डर. इसमें काफी अच्छा इंसाइट्स मिलता है बिल्डर में. तो इसमें मुझे दिखाता है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4865. उसमें से कितना बचा है? 4600. This is, so I can make a maximum profit of 22% on the margin I have deployed. तो मार्जिन मैंने डिप्लॉय किया है 22,408 स्टैंडर्ड ऑन मार्जिन. एंड मैक्सिमम लॉस मेरा हो सकता है 5135 विच इज 23%. ऑब्वियसली इट इज अ लिटिल हायर. और वन मोर थिंग वी शुड लुक एट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 51%. 51% according to them, but based on the strategy I have done, I think the profit probability of profit is very high. क्योंकि मैंने मंथली चार्ट पे भी कंफर्म किया है, वीकली पे भी कंफर्म किया है, डेली पे भी कंफर्म किया है. अगर उसके बाद भी चेंज हो गया तो ठीक है, मेरा बैड लक वो लेके छोटा सा लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा. अभी इसमें क्या होता है, इट शोज ऑल्सो दिस पे ऑफ ग्राफ. तो ये जो ऊपर की लेवल है और नीचे की है, दैट इज एट द एक्सपायरी. So this maximum profit, maximum loss that you are seeing is on the date of expiry. But on a daily basis अगर आपको चेक करना है तो ये ब्लू लाइन है. So it shows कि एक्सपायरी डेट पे 5135 हो सकता है, लेकिन संडे को आज के डेट में अगर प्राइस यहाँ पे आ गई 4700, तो मेरा लॉस 652 हो जाएगा. अगर आज के डेट में प्राइस बढ़ के 5020 भी हो गई, मैंने 4600 का बेचा हुआ है, लेकिन अगर 5000 पे भी चली गई तो भी मेरा लॉस विल नॉट बी मैक्सिमम, इट विल ओनली बी 3400 इंस्टेड ऑफ 5100. तो दिस इज अभी, अगर इवन इफ यू लुक एट इट कि मेरा 5120 तक भी प्राइस चली गई तो भी मेरा लॉस विल बी 3900 एंड नॉट 5135. तो दिस इज बिकॉज द हेज इज वर्किंग अगेंस्ट मी. जितना मैंने बेचा हुआ कॉल है उसका लॉस बढ़ रहा है, उतना मैंने खरीदे हुए कॉल का प्रॉफिट बढ़ रहा है. और यहाँ पे प्रॉफिट में भी ऐसा है कि टिल द एंड आई विल नॉट गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर अभी ये है 4600 का मैंने खरीद बेचा है, तो अगर 4500 तक गिरा तो एज ऑन टुडे या तो मंडे को अगर यहाँ पे रही तो मेरा प्रॉफिट 1447 ही होगा. इट विल नॉट बी 4865. जैसे जैसे टाइम जाएगा एंड आई कम क्लोज टू द एक्सपायरी, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. टाइम बढ़ेगा क्योंकि मेरा टाइम वैल्यू थीटा में खाता जाऊंगा, प्लस प्राइस नीचे गिर रही है, 4400 की तरफ चली गई है, 4100. तो इसमें मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू का भी प्रॉफिट आने लगा. ये दोनों प्रॉफिट आके फिर मेरा मैक्सिमम हो जाता है. सो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट ऑन सेंसिबल. इसमें पे ऑफ टेबल भी देते हैं वो लोग कि कौन से प्राइस पे कितना पे ऑफ होगा. जो हमने चार्ट में देखा वो टेबल में दिखता है. इसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है ग्रिक्स देखना है तो ग्रिक्स भी देख सकते हैं. डेल्टा क्या है, थीटा क्या है. जैसे मैंने बोला कि एट द मनी के आसपास रहेगा तो 0.5 रहता है. एट द मनी से जितना दूर जाओगे उतना कम होते जाता है, क्योंकि कॉल है ना, ये ओटीएम हो गया, आउट ऑफ मनी हो गया. जितना डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपका डेल्टा कम होते जाता है. और अगर ये 4600 है, बेचा है मैंने, इसकी जगह अगर मैं 4700 बेचता है, 5000 बेचता, तो ये 0.55 की जगह पे 0.8 वगैरह हो जाता. और मैंने दोनों तरफ का बेचा है, मतलब एक तरफ का खरीदा एक तरफ का बेचा है. आई हैव टेकन अ हेज. सो यू विल सी कि थीटा इज कैंसलिंग आउट ईच अदर. और डीके भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, टाइम डीके.
So this is the beauty of buying a spread. इसमें स्ट्रेटेजी चार्ट भी दिखता है, तो ये तो मैंने कभी यूज नहीं किया था, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, स्ट्रेटेजी प्राइस एंड ट्रेंड का कैसे कोरिलेशन होगा, बट आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बेटर हियर in this chart. I normally refer to only this chart. So this is how I took this trend का trade. Now इसमें क्या होता है ना, when you are taking a trade, for example, if I am planning a new trade, strategy builder में चले जाते हैं, strategy builder है, strategy builder खुल गया, now I enter what trade I want to take. For example, अगर हम लोग हमारे example पे चले जाए, अब ये bearish का है, तो नाउ सपोज अभी ये तो हो चुका, बट लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पे कुछ हो, I'll just check chat in the meanwhile कुछ, I hope everyone can see the screen and hear me clearly. Please confirm on the chat. Thanks Shreyas. ये बीच बीच में कंफर्मेशन जरूरी होता है, तो आई विल कीप टॉकिंग एंड देन आई विल नॉट रियलाइज दैट यू आर नॉट एबल टू लिसन. ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट अस सी, अगर कुछ सामने सामने एग्जांपल दिख जाए तो M&M में शायद कुछ हुआ था, M&M में कुछ हुआ था, या ये ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पे लेट अस सी, अभी M&M का अगर देखे तो मंथली ट्रेंड इज क्लियरली अप, कोई सवाल ही नहीं है, और ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, उसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर गई, तो मंथली ट्रेंड इज अप. ये मेरे सप्लाई जोन्स में डिलीट कर देता हूँ. वीकली पे देखो, ट्रेंड इज अप, लोअर हाइज लोअर लोज, सॉरी हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड अप है. अभी डेली पे अगर देखो, तो डेली में क्या हुआ, ये दिस इज ए लो, दिस इज ए हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड अगेन हायर हाई, तो ट्रेंड इज अप, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. आई विल टेल यू हाउ आई टुक दिस महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड. ये मैंने ऑप्शंस में नहीं लिया है, मैंने कैश में लिया है, बट अगर ऑप्शंस में लेना है तो कैसे ले सकते हैं, एंड आई मे टेक इट इन ऑन मंडे आल्सो. यहाँ पे मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं लिया था कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ से थोड़ा सा इसको रिएक्शन आ गया था, सो आई विल वेट फॉर दिस लाइन टू बी ब्रोकन. ये जो सप्लाई जोन है, सॉरी, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से दो बार रिएक्शन आ चुकी है, यहाँ से एक बार जोर से गिरा, यहाँ से जोर से गिरा, तो ये सप्लाई जोन वीक हो चुका है, और ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी डेली की, उसको भी तोड़ चुका है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. तो देर इज ए वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि ये सप्लाई जोन तोड़ के प्राइस ऊपर जा सकती है. इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ था, यहाँ डबल बॉटम बन गया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, इफ यू सी हियर एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर तोड़ के ऊपर चला गया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे था, तो दोनों के बीच में स्ट्रगल फॉर सम टाइम, देन ब्रोक एंड वेंट अप. तो यहाँ पे मैं व्यू पॉइंट, अगेन व्यू पॉइंट का पैसा है, तो मैं व्यू पॉइंट इज इट विल ब्रेक एंड गो अप, बट करंटली आई एम नॉट 100% श्योर, तो मैंने कैश में लिया है, आई टुक इट अबाउ दिस ब्रेकआउट, और ये वॉल्यूम ने भी सपोर्ट नहीं किया था डेली चार्ट पे, तो ये पे मैंने पूरा कन्विक्शन पे लिया है. टेक्निकली अकॉर्डिंग टू रूल्स मैंने ये लेना नहीं चाहिए जब तक वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द प्रीवियस डे, बट मैंने रिस्क लेके ले लिया है, तो ब्रेकआउट ट्रेड है,
ये जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, एंड सिंस इट इज ए वेरी गुड पावरफुल ट्रेड, आई केप्ट इनिशियल जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो मैं 3 का रखा है, एंड देन आई विल ट्रेल दिस थिंग। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, जैसे ही मुझे कन्विक्शन मिलेगा ना आई विल बाय मोर इन कैश, और उसका मार्जिन लेके मैं उसका ऑप्शंस का भी पोजीशन ले लूंगा। तो ये अगर अपने को देखना है कि अगर इफ यू वांट टू प्लान, अभी 3600 है, 3690 एंड 3660 पे ब्रेकआउट हुआ है, तो सपोज आई वांट टू प्लान, M&M लिया, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पे ट्रेंड की जगह मैंने जाके M&M टाइप किया। अभी सेंसिबल गिव्स यू वेरी नाइसली ये सब स्ट्रेटेजीज आपको। सपोज माय व्यू पॉइंट इज, आई गो टू रेडीमेड, माय व्यू पॉइंट इज बुलिश, तो मैंने बुलिश पे टैप किया, बेरिश पे किया तो मुझे बेरिश स्ट्रेटेजीज सामने सामने दिखाता है रेडीमेड, न्यूट्रल है तो क्या है और अदर्स क्या है सामने सामने दिखा देता है। सो माय व्यू पॉइंट, आई हैव सिलेक्टेड स्टॉक एज M&M, बेस्ड ऑन द चार्ट माय व्यू पॉइंट इज बुलिश, तो मुझे वो दिखाता है कि यू कैन, सॉरी क्या हो गया, वो मुझे बोल रहा है कि यू कैन बाय कॉल जो हम लोगों ने डिस्कस किया, या यू कैन सेल पुट, या यू कैन बाय बुल कॉल स्प्रेड, यू कैन डू ए बुल पुट स्प्रेड, यू कैन डू ए कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ये मैंने कभी किया नहीं है, रेंज फॉरवर्ड फ्यूचर भी आप खरीद के उसमें प्रॉफिट कर सकते हो, या लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर भी खरीद सकते हो। तो ये नीचे के जो चार है मैंने कभी किए नहीं, आई ओनली वर्क ऑन स्प्रेड्स। तो इसमें सिंस क्या होगा कि आई एम वेरी श्योर दैट द प्राइस विल नॉट फॉल। अभी क्या है, वन व्यू इज सेइंग कि इट इज एक्सट्रीमली बुलिश, दूसरा व्यू है कि बुलिश होगा या साइडवेज जाएगा लेकिन इसके नीचे नहीं गिरेगा, दैट कुड बी माई व्यू। तो उसके लिए आई विल बाय ए बुल पुट स्प्रेड, मतलब बुलिश है लेकिन पुट यूज करके कर रहा हूं, तो देन आई गो टू बुल पुट स्प्रेड, इसको सिलेक्ट किया। ये माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ गड़बड़ किया, एवरी टाइम समवन टैप समवेयर न्यू वर्जन में कुछ गड़बड़ है, यही खुल जाता है। बुल पुट स्प्रेड पे मैंने सपोज डिसाइड किया, तो इट आल्सो गिव्स मी रेडी स्ट्रेटेजी कि 3700 का पुट बेचो। जस्ट अ सेकेंड। तो वो क्या बोल रहा है कि 3690 प्राइस है, तो एट द मनी का पुट बेचो, बिकॉज यू आर वेरी श्योर कि 3700 के प्राइस ऊपर ही रहेगी, या तो साइडवेज जाएगी या ऊपर जाएगी। तो वो बोल रहा है कि 3700 का आप पुट बेचो, और 3600 का पुट हेज के लिए खरीदो। अब ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा है 3600 का पुट खरीदो, मतलब अगर 3600 के प्राइस नीचे गिरी तो जो खरीदा हुआ पुट है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा। और वो 3600 इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक ये जो अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर का है, मतलब अगर 3600 के नीचे गिरा तो इसको भी तोड़ेगा। सो दिस इज ए सपोर्ट फ्रॉम द मूविंग एवरेज 3600 का, दैट इज व्हाट इट इज टेकिंग। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन भी बन गया है। तो यूजिंग AI वट एवर वो कर रहे हैं, लेकिन दे आर सेइंग कि 3600 का आप खरीदो और 3700 का बेचो। अगर प्राइस नीचे जोर से गिरी तो 3700 के नीचे जितना गिरेगी उतना अनलिमिटेड लॉस होगा, 3600 के नीचे जितना गिरेगी उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, तो आपका लॉस लिमिटेड होगा। तो लॉस कितना लिमिटेड होगा, प्रॉफिट कितना लिमिटेड होगा, यहाँ पे दिख जाता है। मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 7880, 21% ऑफ मार्जिन डिप्लॉयड, मार्जिन नीडेड भी दिखा दिया है 38,000, एंड मैक्सिमम लॉस भी दिखा दिया है कितना हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये रिस्क रिवॉर्ड इज एडवर्स, ऑप्शंस के स्ट्रेटेजीज में हमेशा शुरू में यही दिखता है। सो योर कन्विक्शन ऑन द चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देख के सोचोगे नहीं मैं नहीं लूंगा, तो फिर आप कभी ले ही नहीं पाओगे।
इसमें आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 58% अकॉर्डिंग टू देम, विच इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द करंट कैलकुलेशन। बट अगर ये चार्ट देख के आपको लग रहा है बेस्ड ऑन यूर स्ट्रेटेजी कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये तोड़ के ऊपर भाग सकता है, इट हैज बीन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, सितंबर से लेके नवंबर तक साइडवेज है, तो ये तोड़ेगा तो जोर से भागेगा, इफ यू हैव दैट कन्विक्शन यू टेक इट। और अगर इसमें थोड़ा अपने को खेलना है इन प्रॉफिट लॉस, तो क्या होगा कि 3700 पे अभी प्राइस है, लेकिन मेरा कन्विक्शन है ये ऊपर भागेगी, और मेरा कन्विक्शन में ये भी देख सकता हूँ कि कम से कम इतना जो तोड़ा है इसके ऊपर ही रहेगी, सपोज आई कंसिडर दैट। तो मैं क्या करूंगा, आई मेजर दिस। ये मेजरमेंट टूल है, फॉर सम रीजन इट इज गिविंग प्रॉब्लम्स। ये एंट्री लेवल तक है, तो यहाँ पे इट इज शोइंग 6% अप, 6.7, तो 7% भी पकड़ लो तो 14%। तो 14% कहाँ जा रहा है देखते हैं। थोड़ा सा कम ही है, 6 पॉइंट है तो। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, इसका जो एग्जैक्ट विड्थ है, सो 3468 एंड 3660, 3700, 3470 एंड 3700, तो डिफरेंस हो गया 30 का, तो 30 पॉइंट ऊपर 3730, तो 3730 के आसपास का करके देखते हैं, यहाँ पे कितना रेंज है देखते हैं प्लस करके। तो 3750 का अगर मैंने पुट बेचा, और 3650 का अगर मैंने पुट खरीदा, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 10,000 एंड 100, एंड मैक्सिमम लॉस विल बी 9,900। तो मेरा अगर कन्विक्शन ये है कि 50 पॉइंट तो ऊपर जाएगा ही, और 50 पॉइंट के ऊपर महीना भर रह सकता है, साइडवेज भी गया तो देन व्हाट आई विल डू इज, टू मेक द रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, आई विल सेल एन आउट ऑफ द मनी पुट। तो अभी प्राइस 3700 पे है, और मैं 3750 का पुट बेच रहा हूँ, तो इन द मनी है बेसिकली, ऊपर का बेच रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ 50 रुपए। और अगर नीचे का मैंने थोड़ा ऊपर सरकाया तो 3650 हो गया, तो 3650 के नीचे अगर प्राइस गिरने लगी तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। 3750 के जब तक नीचे रहेगी तब तक मेरा प्रॉफिट ही होगा। तो अभी मैं ऊपर के जो बेचा है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ, और नीचे जो है उसमें मैं लॉस में हूँ, लेकिन दैट इज फॉर ए हेज। और इसमें अगर आप देखो कि मैंने ऊपर गया फ्रॉम द करंट प्राइस, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गया दिखाने के लिए, और मेरा मार्जिन 36,000 हो गया पर लॉट। ये जो मार्जिन दिखता है वो पर लॉट दिखता है। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी, इफ इट क्लोजेस, अगर मैं क्या देखूंगा कि नेक्स्ट कैंडल जो है डेली कैंडल, इफ इट क्लोजेस अबव दिस हाई, ये जो कैंडल का हाई है 3718, तो अगर 3720 के ऊपर अगर मंडे का कैंडल क्लोज हो गया, इट विल गिव मी वेरी हाई कन्विक्शन कि ये ऊपर जाने वाला है। तो उसके बाद आई विल टेक दिस ट्रेड। और अभी का जो दिखा रहा है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, इट में चेंज ऑन मंडे, क्योंकि टाइम डिके तो होते रहता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये चेंज हो जाए। तो मैं लेने के टाइम पे आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक दैट। तो दिस इज हाउ आई विल प्लान माई M&M का ट्रेड। तो इसमें और एक दिखाना था कि ये आप यहाँ पे यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, यू कैन रिड्यूस दिस, इंक्रीज दिस, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं इसमें। अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे P&L प्रॉफिट लॉस टेबल भी चेंज हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। So this is what I wanted to show you on Sensible। Sensible का you can log in through one of those 4 brokers for free, नहीं तो आपको खरीदना पड़ेगा उसका प्लान। इसमें ट्रेड प्लानिंग के लिए ये है, इसमें स्ट्रेटेजी बिल्डर है, इसमें स्ट्रेटेजी विजार्ड भी है। तो स्ट्रेटेजी विजार्ड में ये होता है कि यू सिलेक्ट सपोज M&M,
prediction is above. If I say it is about 370, it will be above 3700 till 25th November. फिर वो मुझे बना के देगा रेडीमेड. जिसको ज्यादा स्ट्रेटेजीज आता नहीं, यू कैन डू दिस फॉर पेपर ट्रेडिंग आल्सो. So it will give me an entire table of various strikes. तो अगर आप ये बेचोगे, पुट बेचोगे 3700 का, तो आपको कैपिटल लगेगा 1,00,000 रुपया. ब्रेक इवन विल बी दिस, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 15,190, लेकिन लॉस विल बी अनलिमिटेड, क्योंकि 3700 के जितना नीचे गिरेगा उतना अपना लॉस अनलिमिटेड होगा. यहाँ पे भी ऐसा ही है, अनलिमिटेड लॉस. पुट अगर बेचा तो 3650 का, और बाद में उसने 3 स्प्रेड्स दिए हैं कि 3700 3500 का अगर स्प्रेड लिया, मतलब 3700 का पुट बेचा और 3500 का खरीदा. जो हमने अभी लिया है 3700 3750 3650, उसकी जगह अगर ये लिया तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 11,650. 16 दिन बचे एक्सपायरी के लिए, तो 18% का रिटर्न आ सकता है. इसके लिए अप्रोक्सीमेट कैपिटल लगेगा 66,000. कितना कैपिटल लगेगा वो भी दिया है. बुल पुट स्प्रेड लिया 3700 35, अलग अलग कॉम्बिनेशन उसने दिए, तो यहाँ पे भी 18% मिलेगा. यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है. यहाँ पे 3700 360 जो हम लोगों ने पहले प्लान किया था, उसमें 7,880 का हमने देखा था मैक्सिमम प्रॉफिट. इसमें मार्जिन लगेगा 4,900, लेकिन हम लोगों ने 36,500 लिया था, 3750 ऊपर का पुट बेचा था, तो मार्जिन हम लोगों का 36,000 हो गया था. तो इसमें 5 पेजेस तक उन लोगों ने दिया है. सो किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो 5 पेजेस फुल ऑफ स्ट्रेटेजीज है. तो इनिशियली यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस ऑन एक्सेल शीट. जैसा जैसा आगे के पेजेस में जाओगे उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन रिटर्न कम होता जाता है. और स्प्रेड लेने का और एक फायदा है कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग एन ऑप्शन, इफ यू डू ए स्प्रेड, तो आपको मार्जिन भी बहुत कम लगता है. इंस्टेड ऑफ 1,00,000 ऑड मार्जिन, विल बी यूजिंग ओनली 36,000 मार्जिन. तो आपका ज्यादा आप ट्रेड्स ले सकते हो और भी. सो दिस वाज अबाउट सेंसिबल. I will keep this open, and it is already 12:15, 12:13. So I am open to continue. If you have any questions, you can start asking. मैं अभी स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. I'll open chats. Are you able to see the screen and hear me? So there is one question. In case trend goes against your view, will you wait till expiry or will you exit earlier? तो मेरा ये है कि if I take a trade, as much as possible I will wait till expiry if I have a very high conviction and if the maximum loss is within my limit. For example, if my maximum loss, if I am ready to take up to say 15,000 on a trade based on my total trading capital, अगर मैं 15,000 का लॉस आराम से ले सकता हूँ without losing sleep, then I will wait till expiry if my maximum loss in that position is less than 15,000. लेकिन अगर दूसरा भी है कि दैट आप लॉस की तरफ देख रहे हो कि अगर मेरा समझो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल इज से 30,000 और मेरा रिस्क टेकिंग है 15,000 का ही, तो मैं एक तो वो ऐसा वाला ट्रेड लूंगा ही नहीं. अगर लिया भी तो एज एंड व्हेन इट कम्स नियर 15,000 या क्रॉसेस 15,000, आई विल इमीडिएटली बुक लॉस एंड वॉक अवे. वैसे तो लूंगा ही नहीं, बिकॉज अगर मेजर फॉल आ गया तो आई विल नॉट इवन गेट ए चांस. अनदर रीजन टू एग्जिट विल बी अगर प्रॉफिट होने लगा, तो इफ इट क्रॉसेस 75 to 80% ऑफ माई मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैं एक्सपायरी तक रुकूंगा नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी के लिए क्यों रुकूं फॉर द नेक्स्ट 10%. अगर 75-80% प्रॉफिट आ रहा है तो मैं बुक करके निकल जाता हूँ, सो दैट आई कैन टेक सम अदर ट्रेड विद द सेम मार्जिन. वो 10% रुकने के लिए मैं दूसरा ट्रेड क्यों छोड़ू. और अगर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर जोर से प्राइस गिरी तो मैं लॉस में चला जाऊंगा.
जो मेरा 80% प्रॉफिट बन रहा था वो छोड़ के मैं लॉस की राह क्यों देखूं? तो आई विल क्लोज इट इमीडिएटली वंस आई क्रॉस 75 to 80% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसलिए मैं ये ड्राफ्ट लगा के रखता हूँ। सो महेश जी का क्वेश्चन है, अडानी एग्जाम्पल में व्हाट विल यू डू? ठीक है, तो लेट मी ओपन अडानी एग्जाम्पल। कैन यू सी द स्क्रीन? अडानी का चार्ट दिख रहा है? अच्छा, तो महेश जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टिपिकल स्प्रेड यू विल टेक इन दिस एग्जांपल ऑफ अडानी। यहाँ पे मैंने लिया था, एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रेड था इसमें। लाइक वी सेड कि ट्रेंड इज डाउन, ये ट्रायंगल भी बना है, सो देयर इज अ वेरी हाई कन्विक्शन की प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगी। सो नॉट बुलिश। इफ यू गो टू द दिस थिंग पॉसिबिलिटीज, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में व्यू पॉइंट जो था, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है, एक्सट्रीमली बेरिश भी नहीं, क्योंकि नीचे डिमांड जोन बैठा हुआ है विच इज अ फ्रेश डिमांड जोन। साइडवेज के चांसेस भी कम है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकडाउन मिल चुका है। बट इट इज नॉट बुलिश। नॉट बुलिश मतलब नीचे जाएगी या तो साइडवेज रहेगी, लेकिन ऊपर जोर से नहीं भागेगी। सो मेरा ये था कि नॉट बुलिश। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कि नॉट बुलिश में क्या होना चाहिए। नॉट बुलिश में बेयर कॉल स्प्रेड। अभी इफ यू गो हियर, जैसे मैंने आपको तभी भी बताया था चार्ट में कि ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो मैंने क्या किया, आई सोल्ड ए कॉल हियर। 2500 का कॉल बेचा। 2500 का क्यों बेचा वो भी बोलता हूं। बिकॉज इट इज अ राउंड नंबर। ये 24900 पे ब्रेकडाउन हुआ था, प्लस ये थोड़ा ऊपर नीचे है, इफ यू सी एग्जैक्ट लाइन पे नहीं है। और ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है, दिस इज अराउंड 2500। इसका जो टॉप है इट इज नियर 2500। सो अकॉर्डिंग टू मी इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो मैं नीचे का क्यों लूं, मैं ऊपर का थोड़ा रिस्क कम करूंगा ना। तो 2500 के जब तक, मतलब ये सप्लाई जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस ऊपर नहीं भागेगी। और वो ब्रेकिंग का लेवल है 2500, बिकॉज ये 2500 राउंड नंबर भी है और ये सप्लाई जोन का टॉप भी है। डिस्टल बोलते हैं उसको, बट टॉप ऑफ द सप्लाई जोन। तो मैंने 2500 का कॉल बेचा, which means as long as the price remains below 2500 I will take home maximum profit। और मैंने ऊपर 2600 का खरीदा क्योंकि ये 2600 के आसपास यहाँ पे टॉप है। तो इसके ऊपर अगर तोड़ के चला जाएगा 2600 के ऊपर तो प्राइस ऊपर भाग सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको अगर तोड़ा तो प्राइस ऊपर भाग सकती है। तो मैंने क्या किया, 2600 का प्राइस पे कॉल बाय किया, 2500 का कॉल सेल किया और फिर बैठा रहा। प्राइस नीचे गिरती गई गिरती गई। व्हेन इट केम हियर, ये डिमांड जोन पे, ये डिमांड जोन तोड़ा। यहाँ पे मैं रुका था कि अगर ऊपर भी आई तो साइडवेज रहेगी, तो मुझे टेंशन नहीं है, यहाँ पे नया सप्लाई जोन भी बना है तो टेंशन नहीं है। इसके नीचे गई तभी भी मुझे टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे आ गई, यहाँ से प्राइस ये डिमांड जोन से हवा लेके ऊपर आ गई, फिर भी टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन टूटा हुआ है, तो नाउ इट विल पोटेंशियली एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इट हैज एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस, तो मैं बैठा रहा, जाने दो, भागने दो, नीचे गिरने दो। तो आई सैट ऑन इट। अभी क्या होगा कि माई प्रॉफिट रीच्ड अबाउट 75% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये जोर से गिरा तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट अगर मैं रुका भी रहा एक्सपायरी तक, अभी तो 9 तारीख चल रही है, एक्सपायरी तक वी हैव स्टिल डेज लेफ्ट, तो मैं रुका भी रहा तो कुछ हार्म नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि व्हेन यू आर इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी आपका मार्जिन कॉल बहुत बढ़ जाता है, दे आस्क फॉर मैक्सिमम मार्जिन। तो जो मेरा 35-36 थाउजेंड या 50,000 में हो रहा था, उसके लिए मुझे 1 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा। तो 1 लाख का मार्जिन भी दो एंड कीप वेटिंग, और अनसर्टेनिटी भी फेस करो, उससे अच्छा 75% प्रॉफिट मिल रहा है ना, निकल जाओ। तो दिस इज व्हाट आई डिड इन दिस केस। अभी ट्रेंड का भी मैंने जो लिया है, द मोमेंट ऐसी 75 to 80% प्रॉफिट में निकल जाऊंगा उसमें से। क्यों लटके रहो उसमें?
So this is what I had to share. I will stop sharing the screen. और अभी किसी को questions है? I know we have extended. मुझे लगा भी था कि शायद 1.5 घंटा लगे. But I know कि अपनी टीम में people are here to learn, so you don't mind waiting a little bit. Stop sharing, and I will also allow you to unmute so that you can ask questions directly. So Samir ji has left, no problems. So Yogesh is asking, in options trading, stop loss means hedging using spread. There is nothing like automatic stop loss or automatic exit. Stop loss is always manual, depending on whether you are buying or selling. अगर आपने ऑप्शन बाय किया, फॉर एग्जांपल इफ यू बॉट ए कॉल, तो मैक्सिमम लॉस आपका उतना ही होगा जितना आपका प्रीमियम है. तो इफ योर मैक्सिमम रिस्क इज मोर देन द प्रीमियम, तो दैट इज योर स्टॉप लॉस. फॉर एग्जांपल मेरा अगर 15,000 का मैक्सिमम लिमिट है, 15,000 के ऊपर लॉस हुआ तो मेरा आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट. और अगर मेरा प्रीमियम 10,000 है तो मैं नेकेड कॉल लेके बैठ सकता हूँ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10,000 जाएगा, विच आई एम ओके विथ. लेकिन प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है. तो इफ माई व्यू इज एक्सट्रीमली बुलिश कि ये तो यहाँ से भागने ही वाला है, देन आई विल बाय कॉल विच इज डीप इन द मनी बट द प्रीमियम इज लेस देन माई मैक्सिमम रिस्क, और मैं बैठ जाऊंगा. जितना भागना है भागने दो. तो दैट इज ऑल्सो वन वे फॉर स्टॉप लॉस. ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट दिस इज वन वे टू मेक इट ऑटोमेटिक. और दूसरा हेज है. हेज में भी अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है, मैक्सिमम लॉस इज डिफाइंड, तो उससे ज्यादा लॉस होने ही वाला नहीं है. How many trades are advisable to take at a time? Depends on your capital, of course. Capital and maximum loss. So, at any time, if you say कि maximum capital at risk should not be more than say 10% of my total capital, तो आपके जितने भी ये है, मतलब मेरा ये है कि आई डोंट टेक मोर देन 3% लॉस इन एनी ट्रेड, तो मेरा स्टॉप लॉस वो है, समझो एग्जांपल. लेकिन आई विल नॉट टेक ट्रेड्स मोर देन विच विल रिस्क मोर देन 10% ऑफ माई कैपिटल एट एनी टाइम. तो फिर मैं 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकता. बट इफ माई लॉस टॉलरेंस इज हाइयर, इफ आई कैन टेक, इफ मेरे ख्याल से मैं 20% तक रिस्क करना चाहूंगा, तो फिर मैं 6 ट्रेड ले सकता हूँ या 7 ट्रेड ले सकता हूँ. सो Anshul ji, Anshul Fund say, this is my answer to your question. Let me increase this size so I can read better. Do you also look at open interest when selecting strikes for spread strategies? ये मैं नहीं देखता because open interest keeps changing also. So I don't look at open interest at all. वो इंट्राडे के लिए ठीक है, बट फॉर लॉन्ग टर्म अगर इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर 1 मंथ 15 डेज, देन इट देर इज नो पॉइंट. आज का ओपन इंटरेस्ट हाई लो का जो है, वो कल इट में बी डिफरेंट ऑल्सो. दिनेश जी का मैंने आंसर किया, ट्रेंड गोज अगेंस्ट योर व्यू. अडानी का आंसर. ठीक है, नाउ आई विल ओपन फॉर क्वेश्चंस. आई विल आस्क यू टू, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट सो दैट आप वर्बली भी, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, यू कैन डू दैट. सो अनम्यूट देमसेल्व्स. Hi, Ravi. Sure. Yeah. Yeah. So question is about the slippages. Yes. So what I have seen is, especially for mid caps or where the liquidity is an issue, the Yes. slippages are very high. So Yes. based on my experience, at least I have started doing spreads only for large caps, maybe Nifty 20 or Nifty 30 or something like that. What has been your experience on this? Same thing. How do you Volume handle देखना, slippages? वॉल्यूम देखना ही पड़ता है. सो व्हेन आई टेक ए ट्रेड आई डेफिनेटली हैव टू लुक एट दैट. बट स्लिपेज अगर ज़्यादा नहीं है तो आई एम स्टिल ओके, बिकॉज इफ द स्लिपेज इज से 1%, 1.5%, एंड इफ माई प्रॉफिट मार्जिन इज बिग इन दैट, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन इज बिग, तो 1-8% का स्लिपेज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ. लेकिन आई हैड दिस But प्रॉब्लम विथ वन ऑफ द ट्रेड्स जहाँ पे स्लिपेज बहुत बड़ा था, एंड देन आई लॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द स्लिपेज. तो उसके बाद आई बिकेम केयरफुल.
कि I only go with high volume stocks for options. But then do you stick to large caps or you also go for mid caps? I look at the volume. Mid cap is typically not avoidable, not advised. Basically, mid cap नहीं लेना चाहिए. But there are some mid caps जिसमें volume अच्छा है, तो I can think of if they are already in approved list of F&O, and if the slippage में अगर उसमें डेप्थ देख लेता हूँ, मार्केट डेप्थ जो होता है वो देखता हूँ, स्लिपेज कितना है, and if the slippage is okay with me, I'll go ahead with it. And slippage keeps changing based on the moneyness of the option. जितना Yeah, far correct. out of the money जाओ या far in the money जाओ, उतना slippage बढ़ते जाता है. Correct. And sometimes, I think Zerodha में at least the experience मेरा ये रह चुका है कि वो है ही नहीं वहां पे फिर, then you cannot even trade if it is far OTM. Yeah. So which is why it is the safest bet is to not go beyond Nifty 50. निफ्टी 50 में ट्रेड मिल रहा है तो आराम से लो, उसमें वॉल्यूम भी मिलेगा एंड रिस्क इज आल्सो लेस. Thanks. Okay. There is a question, do you do strategies in next or near month? In some cases I do. जैसे there is one trade I have taken, let me check. सिप्ला का मैंने 1600 का दिसंबर का पी खरीदा है. आई विल शो यू दैट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन and I will also explain why. Whether I will make profit on that or not, I don't know. But risk तो लिया है because वो premium is within my risk tolerance levels. तो उसमें टेंशन नहीं है. Let's go to Cipla. Cipla का मैंने दिसंबर एक्सपायरी का लिया है. Now let us look at from monthly time frame onwards. Options में करना है तो I always start from monthly time frame because I am not doing intraday, I am doing it for swing level. तो सिप्ला का if I look at it monthly में, let me zoom it a bit. Is my screen visible? You can tell me verbally. Yes. हाँ. इसमें क्या हुआ है, प्रीवियस हाई जो था वो 1684 था, which was in October. अक्टूबर ऑफ 2024, एक साल पहले. और ये लास्ट वीक अक्टूबर में इट कुड नॉट ब्रेक द प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई. और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है. आई विल एक्सप्लेन मेथोडिकली मैंने कैसे प्लान किया है. ये यहाँ पे एक तगड़ा सा सप्लाई जोन बना था, मंथली सप्लाई जोन. यहाँ से प्राइस टर्न हुई थी. इफ यू सी, ये पूरा ये था अप ट्रेंड था, इसको डाउन हो गया यहाँ से. तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग सप्लाई जोन. यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर गई. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट प्राइस विल फॉल फर्दर अप टू दिस डिमांड जोन. और नीचे मंथली में कोई डिमांड जोन नहीं है, तो डायरेक्ट जोन जो है वो 3 मंथ में है. यू हैव गॉट अ 3 मंथ डिमांड जोन यहाँ पे. तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से निकली है तो यहाँ तक तो गिरेगी, विच इज 1300 के आसपास. तो ये मेरा व्यू पॉइंट बन गया 3 मंथ चार्ट देख के कि मंथली चार्ट से ड्रॉप हो रहा है, 3 मंथ तक कोई डिमांड जोन नहीं है, तो आराम से आई कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल. दूसरा ये है कि मंथली में दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेरिश हैमर. इसके पहले बुलिश एनगल्फिंग बन गया था, उसको तोड़ने की कोशिश की बट इट कुड नॉट ब्रेक एंड इट मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश हैमर. ये पिछले महीने का था. दिस इज फॉर अक्टूबर. So this is for October. October closure was a strong bearish hammer. और नवंबर अभी खुल रहा है जस्ट मंथ, एंड प्राइस हैज ऑलरेडी गॉन बिलो 20 मूविंग एवरेज. सो अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस. अगर मैं वीकली पे जाऊं तो वीकली में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जिसमें 1 2 3 4 5 6 बार टेस्ट हो चुकी है. 6 times इट हैज बीन टेस्टेड एंड अभी लास्ट वीक इट फॉर्म्ड ए डोजी हियर. वीकली में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैमर बेरिश हैमर बन गया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश आ गया और यहाँ पे जीरो रिएक्शन है. यहाँ से ऊपर रिएक्शन नहीं मिली, अक्टूबर में यहीं पे क्लोज हो गया और यहाँ पे इट क्रिएटेड ए डोजी.
So now, and this is below 20 moving average on weekly also. So now there is a very good chance this supply trend line has been tested multiple times and now it has stopped near that. तो हो सकता है कि in the coming week it will break this. अगर क्या होता है ना, if a trend line is broken with a big candle, तो फिर ट्रेडर फंसते नहीं है कोई. तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए ब्रेकडाउन. लेकिन अगर रुक के तोड़े तो देर इज अ बिगर चांस ऑफ दैट ब्रेकडाउन सक्सीडिंग, क्योंकि यहाँ पे रुका है, दे आर इन इनडिसीजन, और वो उसके बाद तोड़ा है, तो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि ये टूटने वाला है. Bears have bulls have given up trying to pull it up and bears have taken control, इसलिए प्राइस यहाँ से गिरेगी. और यहाँ से इफ यू लुक एट वीकली चार्ट आल्सो कोई डिमांड जोन नहीं है पास में. और यहाँ पे डेली में भी देखो तो डेली में प्राइस ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट के पास रुकी है, तो इट इज लुकिंग एट ब्रेकिंग दिस. तो हो सकता है कि ये में पास आ जाए इसके नियर दिस जोन, साइडवेज जोन, और उसके बाद तोड़े. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. तो मेरा लॉजिक ये था कि अगर इसको तोड़ा तो डेली टाइम फ्रेम पे भी कोई आसपास डिमांड जोन नहीं है, सीधा इधर है 1400 पे. तो अगर 1600 से तोड़ा, 1500 से तोड़ा, तो 1400 तक प्राइस गिर सकती है. मतलब 100 पॉइंट्स तो प्राइस गिर ही सकती है अकॉर्डिंग टू मी इफ इट ब्रेक्स. तो मैंने क्या किया, आई परचेज्ड ए पुट ऑफ 1600. 1600 क्यों कि 1600 के यहाँ पे एक डिमांड जोन है. अगर ये डिमांड जोन तोड़ा तो प्राइस ऊपर भाग सकती है यहाँ तक, एंड दिस इज डीप इन द मनी. मैंने ऊपर का पुट बेचा है तो आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट. यहाँ पे अगर मैं क्लोज करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू में ऑलरेडी 100 रुपया प्रॉफिट है. तो जब तक ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी तब तक आई एम सेफ. तो दैट इज वाई परचेज डे 1600 का पुट, और अभी बैठा हूं. अगर इसको तोड़ा तो इट विल फॉल बिग टाइम, इट विल कम टू 1400. तो क्या होगा कि मेरा 100 रुपए का अभी प्रीमियम यहाँ का मैंने खरीदा, ऊपर नहीं खरीदा ना. मैंने 1600 का पी खरीदा है, लेकिन वो तब खरीदा है व्हेन इट वाज एट 1500. तो प्राइस कितना गिरेगी, 100 रुपया गिरेगी. 100 रुपये में कितना होगा, अभी मेरा डीप इन द मनी है, तो इट विल बी क्लोज टू 1 डेल्टा. तो 1400 पे अगर 100 रुपया गिरा तो 50 तो कम से कम मिलेगा, 80-90 भी मिल सकता है. तो 80-90 अगर इफ आई एम एबल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ इवन 50 रुपीज, तो 375 का लॉट है. तो फॉर 375 लॉट लेट अस डू कैलकुलेशंस. अगर 50 रुपया भी गिरा तो 375 मल्टीप्लाइड बाय 50, 18,750 मेरा प्रॉफिट हो सकता है. 50 ही पकड़ के चला. अगर इफ इट इज क्लोजर, अगर डीप आउट डीप इन द मनी है तो और ज्यादा भी होगा. सपोज आई टेक इट एट 80. सो 375 मल्टीप्लाइड बाय 80, क्योंकि जितना फार इन द मनी जाता है उतना मनीनेस बढ़ता है, तो आपका डेल्टा जो है इट बिकम्स क्लोजर टू 1, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. तो मेरा 30,000 तक प्रॉफिट बन सकता है, विच इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. और मेरा प्रीमियम कितना गया है, लेट अस लुक एट दैट आल्सो. तो आई परचेज्ड एट 102.5, 102. ये फिर माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं ये कब खत्म होगा. 102.5 मल्टीप्लाइड बाय 375 लॉट साइज. तो मेरा प्रीमियम कितना है, 38,000 प्रीमियम मैंने लगाया हुआ है. तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 38,000 होगा. 38,437 के ऊपर मार्केट कितना भी ऊपर दौड़े, मेरा मैक्सिमम लॉस 38,437 ही होगा, प्लस जो ब्रोकरेज है 20 रुपीज पर ट्रेड है, नॉट पर लॉट बट पर ट्रेड. मेरे मल्टीपल लॉट्स है तो भी मेरा 20 रुपीज ही ब्रोकरेज जाएगा, प्लस एसटीटी वगैरह जाएगा जीरोधा में. तो 38,000 इज द मैक्सिमम लॉस आई कैन मेक.
एंड द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, लेकिन मेरे हिसाब से 30,000 इफ डेल्टा गोज टू 80 एंड प्राइस गोज टू 1400, तो मेरा 38,000 लॉस के अगेंस्ट आई कैन एक्सपेक्ट 30,000 प्रॉफिट। तो ये मेरे लिए अच्छा ट्रेड है। अभी इसमें क्या हो सकता है कि देर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी दैट मे गो अगेंस्ट मी, बिकॉज वेन यू लुक एट इट यू ऑल्सो नीड टू लुक एट द एडवर्स पॉसिबिलिटी कि समझो वो नहीं गिरा, ये ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, तो क्या हो सकता है, लेट्स सी। अभी डेली क्या है, यहाँ पे सप्लाईज होने, तो ये भी हो सकता है, ए पॉसिबिलिटी इज कि प्राइस विल टेक सपोर्ट हियर, इट विल गो टू दिस सप्लाई जोन, यहाँ से स्ट्रेंथ लेके फिर नीचे आएगी और फिर तोड़ेगी, ये भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि मेरा अगर नवंबर का खरीदा हुआ है तो फार जो एक्सपायरी है उसका प्रीमियम लॉस जो थीटा डी के वो स्लो होता है, और जो नियरर है उसका फास्ट होता है। तो अगर मैं नवंबर का खरीदूंगा और ये ऊपर गया और साइडवेज गया फॉर सम टाइम और फिर तोड़ा, तो मेरा व्यू पॉइंट तो राइट होगा कि वो तोड़ के नीचे जाएगा, लेकिन टाइम वैल्यू मेरी चली गई, तो मैं फिर भी लॉस में रह सकता हूँ अनलेस द ब्रेकडाउन इज वेरी वायलेंट, वेरी फियर्स। So that is why I purchased a December put and not a November put. So this was the logic when I took that in Cipla. Is it clear? Yes. ओके अभी इसमें मैं और भी कर सकता था, इफ यू लुक एट द चार्ट, मैं इसमें और भी कर सकता था कि या तो ऊपर जाके नीचे गिरेगा या तो नीचे जाएगा, तो मैं 1600 का पुट बेच के भी 1600 का कॉल बेच के भी बेच सकता था कि 1600 का कॉल बेचो और 1800 का या 1700 का कॉल खरीदो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो वो भी मैंने चेक किया ऑन दिस थिंग, अपना सेंसिबल पे उसका रिस्क रिवॉर्ड कैसा आ रहा है, उसका प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, वो भी मैंने चेक किया। आई ऑल्सो लुकड एट कि जो एटीएम है उस पर अगर मैंने बेयर कॉल स्प्रेड लिया कि 1500 का पुट बेचो, 1500 का कॉल बेचो और 1600 का कॉल खरीदो, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो आई लुकड एट मल्टीपल 3-4 पॉसिबिलिटीज कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि 38,000 का रिस्क लेके अगर मुझे 30,000 का प्रॉफिट मिल सकता है तो आई एम हैप्पी। और मैंने इसीलिए ये लिया कि दिसंबर का लिया कि मुझे टाइम है कि दिसंबर एंड तक भी अगर वो जोर से गिरा तो भी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। दैट वाज द आइडिया। एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम हैप्पी सो मेनी पीपल हैव स्टेड बैक फॉर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा होने आया, बट आई एम रियली हैप्पी पीपल स्टेड बैक। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, इफ देर आर नो फर्दर क्वेश्चंस वी कैन क्लोज द कॉल। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉल and we'll keep making money on our group. Thank you very much. Hello. Or one last Thank slide. you. Before we part, I would like to show one last slide, which is very, very important. जो सेबी हमको बताता है कि ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ द पीपल मेक लॉसेस, दैट इज ऑल्सो राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर माय स्क्रीन क्विकली। स्क्रीन दिख Hello. रहा है या? येस स्क्रीन, तुमचा कुठला मी प्रणव बोलतोय. हाँ तुमचा कुठला ग्रुप आहे का एक्झिस्टिंग याच्यामध्ये तुम्ही ट्रेड हाँ, शेअर करताय? व्हाट्सएपचा एक व्हाट्सएपचा ग्रुप है अपना, रवि Okay. दातार, एंड दिखाता हूँ, शो यू दैट ग्रुप आल्सो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सेंड मी, मैं यहाँ पे ग्रुप का इनविटेशन शेयर करता हूँ, सो इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन, सो रवि दातार एंड फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का ग्रुप है। रवि दातार एंड फ्रेंड्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स ग्रुप। तो हियर नो वन इज गिविंग एनी टिप्स कि ये खरीदो ये बेचो, बट वी कीप शेयरिंग आवर ट्रेड्स जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, सो दैट अदर्स कैन आल्सो कमेंट ऑन दैट। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो लेना ही चाहिए, इसमें ये हो जाता है कि व्हेन आई शेयर ए ट्रेड पीपल आल्सो गिव फीडबैक कि ये तेरा बराबर है, ये गलत है, ये भी सोच। जैसे संजय फॉर एग्जांपल समटाइम्स रिएक्ट्स, अनिल जी का भी रिएक्ट करते हैं, तो वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, Okay. दैट इज
of creating this group. तो इसका if you want I will share my joining. या तो you can send me a WhatsApp and I can send you. But I think better will be to share यहीं पे. If anyone wants to join, you can. ओके, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड ना, वो देखता हूँ इसमें से शेयर कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली. ये पता नहीं आज माइक्रोसॉफ्ट क्यों तकलीफ दे रहा है. एनी टाइम आई डू एनीथिंग वो पॉपअप हो जाता है. ये पूछना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट को, व्हाई आर दे ट्रबलिंग लाइक दिस. Anyway, so what I will do is I have anyways send that invitation on various groups. तो अगर आपके पास है तो वो यूज कीजिए. या तो let me see if it allows me to do it from here. नहीं करने दे रहा है for some reason. नहीं हो रहा है. ठीक है, let's not struggle. You have my number, WhatsApp number from the group wherever you are joined. So you can send me a request and I will add you to that group. No point struggling with this. Is anyone having the same problem with Microsoft? ठीक है, so we'll close the call and I'll stop sharing first. एक second. Ravi So sir, I'll leave. Yes. you can try switching off the recommendations if they are on in Microsoft. That's one of the Yeah. it's sometimes it opens a startup pop-up. Okay. ठीक है, so I'll probably I can I'll share a talk link. to you. Yeah. I'll try doing it, and if not, then I'll call you and you can help me on the phone. Sure, sure. So I will want to leave you with one quote from Warren Buffett. Risk comes from not knowing what you are doing. तो आज जो मैंने बताया, I have told you what is there to know in options. If we take a calculated risk, the risk is much less. ठीक है, so we'll end the call. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye. 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 Thank you.